गुड मॉर्निंग जयपुर। अभी तुम बोलोगे गुड मॉर्निंग किधर मैम। हाँ नहीं, अच्छा किया ध्यान नहीं दिया बच्चों। गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं हम लोग? गुड मॉर्निंग के वाइब्स पता है आपको? यस, वेरी गुड दैट यू हैव दैट फीलिंग दैट जब जागो तभी सवेरा। क्योंकि हम सब यहाँ पर सो गए थे अभी थोड़ी देर के लिए ना, तो हमने जगा दिया अब कि अब जाग जाओ। और अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं अपनी सफ़र पे जो हमने शुरू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। और मेरे से बहुत अच्छे वक्ता यहाँ हैं, मेरे से बहुत अच्छे समझाने वाले, बोलने वाले और एजुकेटेड लोग यहाँ हैं। मैं कुछ थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक मिशन पे हूँ, जैसा आपको तंसी ने बताया कि 2025 तक हमको 1 लाख लोगों के माइंडसेट को बदलना है। आप लोगों को कहीं ये लगता है कि ये चीज़ की ज़रूरत है आज की डेट में? माइंड सबके कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? यस तो हम कुछ कोशिश करेंगे इस चीज़ की कि इसको हम किस तरह से ये समझें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? एवरीवन, एवरीवन बोलेंगे क्या सिली क्वेश्चन है मैम, ऐसे कोई पूछता है क्या? ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या? पूछने वाला क्वेश्चन है, किस तरह से। I just want mic to be circulated there also in the audience. I want an answer to this question. How many of you think that you are successful at this point, wherever you are? Whatever you have achieved, whatever you are having now, you can have the answer. Just raise your hands and tell the answer for this. I want 1 or 2 sharings from your side, that how many of you think that you are successful till now. I'm not telling the goal or the achievement you wanted to achieve and you have not achieved still. I don't want that. आप अब जहाँ पर हैं, अभी जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वहाँ तक कितने लोग मेंटली पावरफुल हैं और सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ? Yes, anyone? From the audience, I want some answers so that we can go ahead very fast. Yes, माइक किसके पास गया? हाँ, शुरुआत कर सकते हैं, आप भी शुरुआत कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं सक्सेस के बारे में? Any of your sharing what you feel about success? या आपको क्या बनना है, क्या कहाँ तक पहुँचना है, क्या चाहिए आपको लाइफ में, what you need? क्या लगता है आपको सक्सेस की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? Success is all about that. First, we have to be honest with ourselves. That Very what good. if I am a good human being in this world is the first priority. For you, very good, very good, very good thinking. And academics is that it's our duty or it's our aim, whatever we want. So we will go for that. Yes, yes, definitely, very good answer. Anyone else? Yes, माइक गर्ल्स में भी घुमा दिया जाए थोड़ा सा. Success is whatever goals you have set for yourself, somehow you achieve them or you get close to them. That is success. And not comparing yourself to anyone, but being the person you feel you want to be rather than anyone else. Be your own inspiration rather than taking it from anyone else in the world. Correct, very correct. Thank you so much. A big hand for the answer. Very good answer. Ma'am, your name please? Rumana Sharma. Very good, very good. Very nice sharing. Anyone else? Yes, here one hand is there. So success starts from S, and according to me,
the answer also should start from S, only according to me. So, what I want to say about success is the smile and satisfaction you get after doing any sort of job you have decided to. That's success. Very good, very good. Thank you so much. Thank you so much for the sharings. So you can see, friends, that you all have got the answer for this in a different way. Everyone's perspective, सबका समझने का तरीका अलग अलग है. सबको अपनी तरह से सक्सेस पता है. तो मेरा भी वही मानना है कि मैंने जो आज आपको टॉपिक बताया है, जो धनसी ने डिस्कवर किया था कि यस क्या करेंगे आज हम ये सीखेंगे कि हाउ टू बिकम विनर ऑफ योर ओन लाइफ. यू आर ऑलरेडी अ विनर. इफ यू हैव थॉट ऑफ इट, योर जर्नी इज हाफ डन. Your mind itself is going to tell you that yes, I am the winner of my life. जो भी मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने हिसाब से किया और मैंने वो कर दिखाया. सबसे बड़ी बात है. तो वही चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं. कुछ ट्रांसफॉर्म होके जाएंगे आज. सब लोग बता तो बहुत कुछ देते हैं, बोल तो बहुत कुछ देते हैं. बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता. कैसे करें? तो आज मैं प्रैक्टिकली आपसे करवाऊंगी वो सारी चीज़ें जो मैं करवाती हूँ सेशंस में, और आप फील करेंगी कि यस, यू हैव चेंज्ड योर माइंडसेट. योर थिंग्स आर टोटली चेंज्ड. क्योंकि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं आज तक, या क्यों ये चीज़ें रह जाती हैं? क्योंकि दोस्तों, हमेशा ये सोचो कि जब भी हमने कोई टारगेट रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है. छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स अपने से. सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम आज तक सिर्फ लोगों पर उंगलियां उठाते चले आए. आज तक हमने यही सोचा कि वो ठीक नहीं था, ये सिचुएशन ठीक नहीं थी, ये इंसान ठीक नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ या मैं वो अचीव नहीं कर पाया. लेकिन ये नहीं समझा कि हम किस तरह से खुद को वही 3 उंगलियां दिखा रहे हैं, वो 4 उंगलियां दिखा रहे हैं जब किसी और की तरफ हमने उंगली उठा दी. तो हमेशा जितना बदलाव लाना है, अगर हमने वो अपने में बदलाव ले आए तो हम बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ जाएंगे. स्टोरी सुनना सबको पसंद है, सबको स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं. हम क्यों नहीं कर पाते ये चीज़? क्योंकि हम फिजिकली कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं. एक बहुत ही रियल स्टोरी सुनाना चाहूँगी आपको, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी में हर चीज़ की जा सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है. अगर मैंने सोच लिया, ठान लिया, तो हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में पॉसिबल है. एक लड़की थी, छोटेपन में सब लोग जैसे मम्मी पापा के प्रोटेक्शन में, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वैसे ही रहा करती थी. और जब वो 9 साल की हुई तो अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई. और वो तबीयत ख़राब होते होते इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई कि 9 साल की उम्र, सिर्फ वेट 15 किलो, और डायग्नोस नहीं हो पा रहा है कि उस बच्ची को क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है. माँ बाप परेशान, सब लोग परेशान, लेकिन पता नहीं चल पा रहा. कम से कम ये कुछ 1985 की बात है, आज से 40 साल पहले की. और उस समय पर जब ये पता चला कुछ टेस्टिंग्स के बाद कि उसको डायबिटीज़ है, तो उस समय पर लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये शुगर क्या है, ये डायबिटीज़ क्या है. और उस ज़माने में वो पता चला जिसका किसी को कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी, ना माँ बाप को भी वो बीमारी नहीं थी. ऐसा भी नहीं था कि हेरिडिटरी में वो चीज़ गई थी. और इस तरह से उस लड़की का जीवन शुरू हुआ और वो आगे बढ़ना शुरू हुई उस बीमारी के साथ. उस समय पर जब डॉक्टरों ने बोला कि अब इसको ज़िंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन के साथ चलना पड़ेगा, आज से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ दोस्तों, अभी नहीं,
उस समय पर, जिस समय लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं। आज तो ये घर घर में हो गया है, हर एक 6 महीने के बच्चे को भी, और 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, किसी को भी आजकल हो रही है। हेरिडिटरी में आ गई है, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है। लेकिन उस समय पर इस चीज़ का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उस समय पर जो इंजेक्शंस लगते थे वो आज वाले इंजेक्शंस नहीं हुआ करते थे। उस समय पर एनिमल से इंजेक्शंस बनते थे और वो वाले इंजेक्शंस उसको लगते थे। और वो सारी ज़िंदगी उसने उसके साथ निकाली, पूरी पढ़ाइयाँ करी, 10th 12th 10th में उसको उसके साथ साथ चिकन पॉक्स हो गया। और बड़ा इम्तिहान कि वो लिख ना सके, और ऊपर से एग्ज़ाम के दौरान ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिखने की, और वो सारे हाथों की नसें दर्द हो जाने लगती हैं। आज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ऐसे बच्चों को भी एक्स्ट्रा टाइम देने का, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस समय पर वो एग्ज़ाम पास हो गई, और विद 85% of marks in CBSE board in 1985. And at that time, when people were asking to her father, बहुत सारे लोग उसके पिताजी को पूछा करते थे कि ये आगे कुछ कर पाएगी, कुछ पढ़ेगी ये। तो उसने 12th किया और उसने सोचा कि मैं आगे मेडिकल लाइन में कोई ना कोई ऐसी रिसर्च करूं ताकि वो बीमारी को लड़ने की किसी और को तकलीफ ना हो। और उसने 12th पास किया। 2 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो गया उस लड़की का, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजेस में इंसुलिन रखने की फैसिलिटी नहीं दी गई। फिर वहीं उस मौके पर फिर उस लड़की के साथ में वही तकलीफ कि आज कोई भी मौका हाथ से चला गया। 2 मेडिकल कॉलेजेस इनकार कर चुके। उसके पेरेंट्स ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी रुकी नहीं है, अभी भी बहुत आगे जाना बाकी है। और उसने फिर से पढ़ाई शुरू करी, और पेरेंट्स कहने लगे बेटा आप मेडिकल फील्ड में जाके सेवा करना चाहते थे ना, तो आप अब भी सेवा करोगे एज अ एजुकेटर, लेक्चरर, टीचर बन के। आप मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिपेयर करोगे, आप डॉक्टर्स बनाओगे, आप इंजीनियर्स बनाओगे, आप इतने फील्ड वाले लोगों को बनाओगे। और फिर उस लड़की ने शुरू कर दी अपनी लाइफ, और उसने BSc करी, MSc करी, B.Ed करी, और आगे बढ़कर कॉलेज में एक जॉब मिला जो बहुत ही वंडरफुल गवर्नमेंट जॉब, विथ द प्रॉब्लम कंटिन्यूसली गोइंग। ये प्रॉब्लम हटने वाला प्रॉब्लम नहीं था, ये मरते दम तक उस लड़की के साथ जाने वाला था। और उस लेडी ने कभी कोई ऐसा महसूस नहीं किया ज़िंदगी में कि मैं हार जाऊं। उस बच्ची ने और आगे पढ़ाई करके आगे ऐसा माना गया कि घर में लोगों की बातें, आपको पता है लड़की जवान हो गई है, लड़की की शादी कर देनी चाहिए, कोई ना कोई तो मिल जाएगा ज़रूर, लूले लंगड़ों की भी शादी हो जाती है, तो ये बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, इसको क्या कोई लड़का नहीं मिलेगा क्या? ये रिश्तेदारों की बातें उस बच्ची के लिए घर में होने लगी। वो बच्ची जो ये सब कुछ सुन रही है, उसके गो थ्रू हो रही है सारी तरह से, और उसने ये मान लिया कि हाँ ये सब कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, इसको हम करके दिखाएंगे। और तब उस लड़की की ज़िंदगी में राजकुमार आ गया, और वही राजकुमार जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि ऐसी सब सिचुएशन में माँ बाप ने भी यही सोच लिया था, माँ बाप ने भी यही बताया कि बेटा शायद आपकी ज़िंदगी नॉर्मल लड़कियों की जैसी नहीं है, जो आपको इस बीमारी के साथ एक्सेप्ट करेगा वही आपका साथ निभाएगा और आगे बढ़ेगा। और उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उस राजकुमार ने तो बोल दिया, लेकिन लड़की इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी कहीं भी। उसने कहा रुको भाई, अभी तो टाइम बाकी है, इतनी जल्दी नहीं है कि हम आपके साथ आपने बोला और हम चल दें, हमें भी देखने दो कि तुम में कितना पेशेंस है। उन्होंने रोक के रखा उसको, और उसने कहा कि मुझे कमा लेने दो, मेरे हाथ में मेरी दवाइयों का पैसा आने दो, फिर मैं जाऊंगी किसी और के घर पे और किसी और के घर को बसाऊंगी, देखूंगी कि हाँ वो इंसान किस तरह से मेरे लिए रुक सकता है। 7 साल और पढ़ाई करी, और पूरी तरह से जॉब लगने के बाद उसी इंसान के साथ शादी की। और फिर एक क्वेश्चन मार्क आया, क्या पॉसिबल है कोई भी डायबिटिक लेडी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? वो भी
हार नहीं मानी उसने कहा ज़रूर ये मैं करके दिखाऊंगी दुनिया को कि हर चीज़ पॉसिबल है अगर वो ठान ले, अगर वो माइंड को मना ले। माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने पावरफुल बना दिया तो वो हर चीज़ कर सकता है। और उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। आज वही बच्ची पूरी तरह से वेल सेटल्ड with a husband, with 2 daughters of age 22 and 17 is there in front of you, my dear children. Myself, Jyoti Kundu, a mind programming expert, जिसने जो ये स्टोरी, जो ये लड़की जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई, मैं खुद हूँ और मेरे साथ जीवन में यही बीता। आप जिनको देख कर गए वही राजकुमार मेरी ज़िंदगी में आया और उसने कहा और उसने 7 साल मेरे लिए वेट किया कि यस मुझे चाहिए तो यही चाहिए। और मैंने भी वेट करवाया ये देखने के लिए कि आज जो 25 साल हमने गुजारे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारी नींव बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारा जो लगाव था वो खाली इनफैचुएशन नहीं था। ये रिलेशनशिप, मैं ये रिलेशनशिप भी सिखाती हूँ लोगों को, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। एज Dansi have already introduced me as a life coach, तो मैंने ऐसे बहुत सारी रिलेशनशिप्स बचाई हैं जहाँ पर लोग हार मान जाते हैं, सिर्फ गलतियाँ ढूंढने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी आज ज़िंदगी के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर अभी तो बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ, लेकिन जब ज़िंदगी रियल लाइफ में शुरू होती है तो वो वैसी नहीं होती है जो हम सोचते हैं। वो सिर्फ पिक्चरों पे अच्छी लगती है, रियल में स्टोरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और उस उतार चढ़ाव को जीना ही सबसे बड़ा सक्सेस है लाइफ में। तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताया मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को, विद डिफरेंट पॉजिटिव एफर्मेशंस, गिविंग एवरी डे टू माई सेल्फ that I am awesome, I am confident, I am an achiever, I am everything, I am the super strong woman. और उस मोटिवेशन ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा। मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरी शुगर आप मानेंगे नहीं, शायद अभी भी चेक की जाए तो लो पे जा चुकी है। मैंने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है। मैं 40 शुगर 50 शुगर, जिसको डॉक्टर कहता है कि वो बिस्तर पे बच्चा होना चाहिए, उस बच्चे को सलाइन चढ़ रही होनी चाहिए, शुगर चढ़ रही होनी चाहिए, लेकिन मैंने उस पे लेक्चर लिए हैं। मैंने लोगों को प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ किताबी नॉलेज है। अगर आप माइंड को पावरफुल बना लो तो चाहे मेरी शुगर कितनी ही नीचे चली जाए, कितनी ही ऊपर चले जाए, मैं अपना काम करके रहती हूँ। ये माइंड को कैसे पावरफुल बनाया? विद द थॉट ऑफ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जो हम अभी करेंगे सब लोग, with that powerful single thought of silence and gain that particular knowledge of power. थोड़ी सी लाइट्स ऑफ कर देंगे हम लोग, तो वी विल फील दैट पर्टिकुलर साइलेंस इन आवर माइंड एंड बॉडी, एंड वी विल फील दैट हाउ दिस बॉडी कैन बी आवर ओन बॉडी एंड हाउ टू चेंज आवर लाइफ। हम लोग आज तक क्यों नहीं वो कर पा रहे? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया है। कंपेयर नहीं करना है हमको किसी से। मैं कब अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ? क्योंकि मैंने वो काम सोचा और कर दिया। मैंने अपना 2.0 वर्जन देख लिया, क्योंकि मैंने आज मैं इस स्टेज पर हूँ, जिसके लिए मैं क्रिडन टीवी को, सुनील जी को, कुबेर जी को, जिन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने उनके साथ जब कनेक्टिविटी की तो आज ऐसे ही नहीं मैं मुंबई से आपके लिए यहाँ तक दौड़ के आई, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार खींच के लाया कि नहीं, मुझे कहीं अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ और माइंड्स को भी बदलना होगा। मैं एक साथ 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकती, थ्रू कुछ लोगों के पहुंच सकती हूँ।
आपको मैंने सिखाया, आप अपने घर में जाके लोगों को बताएंगे, आपके घर के लोग आगे किसी को बताएंगे, और इस तरह से जब चेन जुड़ती चली जाती है तो एक माइंड से हज़ारों माइंड कनेक्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी लाइट्स ऑफ करेंगे हम लोग कहीं से, कोई और है यहाँ पर जो थोड़ा लाइट्स। Everyone, just close your eyes. Sit silently with the back straight. सभी लोग सबसे पहले अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देते हुए और नमस्कार वंदन करते हुए अपने मम्मी और पापा की तस्वीर अपने सामने, जो भी गुरुजन हैं जिनको हम रोज देखते हैं, पढ़ते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, उन सभी को प्रणाम। उन सारे मेंटर्स को मेरा प्रणाम जो आज मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और मेरे माइंड को उस पावर से भरते चले जा रहे हैं। ये माइंड जिसमें एक सुंदर प्रकाश का ध्यान देते हुए देखिए, वो प्रकाश एक सफेद प्रकाश जो चारों दिशाओं से आपके सिर के ऊपर आ चुका है और आपको वो सारी ऊर्जा प्रदान कर रहा है जिसके लिए आप आज तक कोशिश में थे कि मैं मेडिटेट कैसे करूं। ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बहुत ही आसान, शांत सा वातावरण। Take a deep breath and see. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. हम सब अपने अंदर झांक के देखें कि ये ऊर्जा हमारे अंदर मौजूद है जिसका हमको आज तक पता ही नहीं चला। मैं इतनी पावरफुल हूँ। वन एफर्मेशन मेडिटेशन जिसमें हम अपने आप को बताएंगे कि आई एम मोर देन इनफ। जो मेरी ऊर्जा आज है उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा आप सब में है। कंटिन्यूअस आप भी अपने अंदर अंदर बोलेंगे, आई एम मोर देन इनफ। I am more than enough. 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 मैं अपनी शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिवान हूँ। मैं अपनी शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिवान हूँ। मैं अपनी शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिवान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ।
मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्तिवान हूँ। मैं अपनी शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिवान हूँ। मैं शक्तिवान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान 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 हूँ। Be in the zone of superpower. Be in that zone of complete power with every mind, body, and soul. Our entire body in the purple state of our mind. Our mind, body, and soul is in alignment. जब हमारा मन, मस्तिष्क और ये आत्मा एक साथ जुड़ जाते हैं तो हम एक पर्पल स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करते हैं जिसमें हमें हर वो चीज़ पॉसिबल लगने लगती है जो आज तक हमने सोची है और की है। मैंने हर वो चीज़ इसी सबकॉन्शियस माइंड के पावर से पाई है जिसमें 90% की शक्ति है और कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% चलता है। कमिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट, अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ेंगे और रब करते हुए उसमें ऊर्जा पैदा करेंगे। दोनों हाथ गर्म होने लगेंगे। जैसे ही आप अपने दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से रब करेंगे तो इसमें जो ऊर्जा पैदा होगी उसको आप अपने पूरे सिर से लेकर पूरे शरीर पे उसको प्रवाहित करेंगे ताकि जो ऊर्जा आपने अभी एकत्रित करी है वो आपके पूरे शरीर को लाभान्वित करे और आपका पूरा शरीर उस एनर्जी से भर जाए, उस ऊर्जा से भर जाए जो अभी आपने अपने अंदर स्वयं पैदा की है। दोस्तों, आपने खुद ये किया है। आज आप ये कर पाए हैं और आपको महसूस हुआ होगा कि मैं अब किसी भी तरह से अपने इस मन को शांत करके उसमें ऊर्जा भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए और फिर से अपने कॉन्शियस जगत में आते हुए हम
अपनी कॉन्शियसनेस पे ध्यान देंगे। ये कॉन्शियस माइंड जो हमेशा कॉन्शियसनेस में रहकर सब कॉन्शियस को भूल जाता है, ये सब कॉन्शियस जो इतना पावरफुल है, जो किसी भी डिजीज़ को, किसी भी मुसीबत को, किसी भी तकलीफ़ को, किसी भी प्रॉब्लम को, सबको दूर कर सकता है और अपने आप को एक पावरफुल इंसान बना सकता है। लाइट्स ऑन प्लीज। यस दोस्तों, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाउ यू वर फीलिंग and after this session, how you are feeling? What is the difference which we were before and we are after? After the meditation, how you are feeling? इस पाई इसी तरह से, और मैं इसी पावर को, इसी एनर्जी को लेकर हर देश दुनिया में जाना चाहती हूँ और दुनिया में ये बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी जगह पर अभी तक, अमृतसर, आप दिल्ली, आपका चेन्नई, बहुत सारी जगह पर मैं करके आई हूँ ये सारी चीज़ें, और लोगों को बहुत महसूस हुआ है वो बदलाव और वो चेंज, कि वो पावर महसूस कर पा रहे हैं। मैं ऑनलाइन में भी आपको कनेक्ट हो सकती हूँ, बिकॉज़ आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो आप कभी भी जब भी चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं और पर्सनली मिल सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू क्रेडेंट टीवी, एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।